Welcome to all in Gate Plus. Today our topic is energy and power part 2. Part 1 we have already discussed. Okay, first, suppose a composite signal xt, that is the combination of x1, x2, x3 and so on. And if the energy of x1 is suppose E1 and power and E2, energy of x2 is E2, suppose this one is the E3. If all are the energy signal, then total energy of E equals to, we can say here, E1 plus E2 plus E3. Yeah, this one is not correct here. Okay, and if it is power signal, then we cannot say P equals to P1 plus P2 plus P3. Okay, this one is not correct already, because this one is correct, P equals to P1 plus P2 plus P3. This one is correct when x1, x2, x3 are orthogonal, and E equals to E1 plus E2 plus E3 is correct when x1, x2, x3 are orthogonal. Means equality condition is satisfied when x1, x2, x3 must be a orthogonal. If it is not orthogonal, what is the meaning of orthogonal? जैसे मैं सिंपली अगर लेमा लैंग्वेज में बात करूं तो यहाँ पे x एक्सिस है, यहाँ पे क्या है, y एक्सिस है. तो y का कोई भी कंपोनेंट x में नहीं हो सकता, x का भी कोई भी कंपोनेंट y में नहीं हो सकता. दिस इज द वे टू find orthogonality condition. Suppose if it is any point here x1 and if this one is the 45, then इसका एक कंपोनेंट यहाँ पे होगा, एक कंपोनेंट कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा. ठीक है, ऑर्थोगोनलिटी में सिंपली हम बोल सकते हैं कि क्या होता है कि कोई भी उसमें जो है उसका कॉमन पार्ट नहीं होगा. ठीक है, और कॉमन पार्ट नहीं होगा तो हम सेपरेटली सबका क्या कर निकाल सकते हैं, एनर्जी निकाल के सबको ऐड कर सकते हैं. और किसी सिग्नल का किसी में भी कुछ पार्ट आ रहा है तो हम ऐसे डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते. ठीक है, ये चीज ध्यान रखना हमेशा. ओके, मीन्स हाउ वी कैन चेक हियर x1, x2, x3 एंड आर ऑर्थोगोनल. फर्स्ट, देयर इज सम कंडीशन हियर. फर्स्ट, सपोज एनी साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी dt इन कंप्लीट टाइम इंटीग्रल में इंटीग्रेट करेंगे कंप्लीट टाइम इंटरवल में, तो हमेशा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0. साइन का देख लो, एक टाइम पीरियड टी होगा यहाँ पे, इसमें जितना पॉजिटिव होगा यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव. हमेशा कोई भी साइन का होगा, साइन 5t, साइन 6t, साइन 100t, 1000t, ये कंप्लीट टाइम इंटरवल में जब भी इंटीग्रेट करेंगे हमेशा इसकी वैल्यू 0 होगी. सेम कंडीशन इज ऑल्सो अप्लाइड फॉर कॉस. वी कैन राइट हियर m ओमेगा नॉट t, मैं जनरल लिख दे रहा हूँ, dt दैट इज इक्वल टू 0. मीन्स व्हेन वी आर इंटीग्रेट साइन एंड कॉस इन कंप्लीट टाइम इंटरवल, this one is always be equals to 0. Okay, one thing is important here. Okay, next thing is here, how we can check the orthogonality. Okay, we can check the orthogonality if suppose x1, x2 are periodic, then orthogonality condition. Suppose if I want to check x1 and x2 only, then how we can check here, in x1 and x2, then just if it is what, non-periodic, then minus infinite to infinite x1, x2 dt equals to what, 0, then we can say x1 and x2 are orthogonal. And if it is what, periodic signal, then we have to integrate in complete time interval x1 and x2 dt that is equals to 0. Okay, suppose if I take here sine and t and cos t dt in complete time interval, we have already about the cos t and sin t are what, orthogonal, because we can write here sin t plus 90 equals to, again this one is getting here cos t, means दोनों में एंगल कितना है, 90 डिग्री. मीन्स वी कैन से sin t and cos t ऑर्थोगोनल टू ईच अदर. बट चेक करते हैं 0 होगा क्या, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे क्या हो गया, 1/2 हो गया. ठीक है, 1/2 हो गया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 1/2. नेक्स्ट, साइन ऑफ 2t dt in complete time interval, again this one is goes to 0. Any sine of mt dt, this one is integrate in over complete time interval, this one is again 0. This condition is also fulfilled for cos mt again. Okay, this is a way to find the any two function is orthogonal or not. If it is non-periodic or aperiodic, then we have to check from minus infinite to infinite, and if it is what, periodic, then we have to check only in complete time interval, that is t here. Okay, let's check the what is the property of orthogonality here. Okay, first one is, we have already discussed about what,
in complete time interval integrate here, that is 0. That is the condition for orthogonal if x1 and x2 are the periodic. Okay, harmonic different frequency are orthogonal means sin and cos of, जैसे साइन की बात करें तो इसके क्या बात करेंगे, जैसे मैं बोलूँ इंटीग्रेट करूँ कंप्लीट टाइम इंटरवल में साइन ऑफ 2 ओमेगा नॉट टी एंड साइन ऑफ 3 ओमेगा नॉट टी डी टी। ये सब फोरियर सीरीज में बात होगी अच्छे से, बट यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। मैं क्या बात कर रहा हूँ, साइन 2 ओमेगा नॉट टी एंड साइन 3 ओमेगा नॉट टी, और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे 1/2, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा। फर्स्ट वी कैन राइट हियर कॉस ए प्लस बी एंड नेक्स्ट वी कैन राइट हियर कॉस ए माइनस बी। यहाँ पे माइनस प्लस होगा उसको हम देख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। माइनस प्लस होगा तो अगेन इसको इंटीग्रेट करेंगे, अगेन दिस वन इज, मैंने बोला तो कोई भी टर्म हो हमेशा इसकी वैल्यू 0 होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ से कोरिलेट करके, साइन एंड कॉस विथ डिफरेंट फॉर फ्रीक्वेंसी और हार्मोनिक्स आर ऑलवेज बी ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। मीन्स वी कैन से साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन विथ डिफरेंट हार्मोनिक ऑलवेज बी ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। Okay, sine and cos function of same frequency and phase always be orthogonal to each other। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे, sin 2t ले लें और cos 2t ले लेंगे dt। sin और cos सेम फ्रीक्वेंसी के होने चाहिए और फेज भी सेम होना चाहिए, तो हमेशा क्या हो ऑर्थोगोनल। ये फेज क्यों बोले, ऐसे मैं बोलूँ sin ऑफ 2t और यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, cos ऑफ 2t प्लस 9t। तो अगेन ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो साइन फंक्शन विथ सेम फ्रीक्वेंसी तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, और साइन स्क्वायर सेम रहेगा मीन्स इसको हम ऑर्थोगोनल नहीं बोल सकते ना, साइन 2t एंड साइन 2t इसको ऑर्थोगोनल बोलेंगे क्या, दोनों सेम है, ये कभी भी ऑर्थोगोनल नहीं होगा। तो इसका जो है हमेशा एक t/2 टाइप का टर्म आएगा, कौन सा, इसको 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा में तोड़ ब्रेक करेंगे तो यहाँ से एक टर्म कौन सा आ जाएगा, t/2 वाला टर्म आएगा। इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। चलो एक देख लेते हैं यहाँ पे, साइन ऑफ t and sin of t dt, that is equals to what, we can write here 1/2 2 sin square t dt। if I integrate complete time interval, that is equals to what, we can write here cos 2t equals to what, 1 minus 2 sin square t here, then we can say here 1/2 integration of what, 1 minus cos of 2t dt। हमें बता दो, अगेन इसको कंप्लीट टाइम टर्म में इंटीग्रेट करेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 आउट रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा t, तो t/2 आ चुका है। मीन्स 0 नहीं आया ना, मीन्स सेम, मीन्स दोनों क्या है सेम है, तो कभी भी 0 नहीं आ सकता, t/2 आएगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि साइन एंड कॉस फंक्शन विथ सेम फ्रीक्वेंसी एंड फेज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी ऑर्थोगोनल होगा, ठीक है। नेक्स्ट, डीसी एंड साइनसोइडल फंक्शन इज आल्सो ऑर्थोगोनल। मैं डीसी में 2 ले लूँ, एक ले लूँ साइन ऑफ 2t ले लूँ, तो ये भी ऑर्थोगोनल होगा। यहाँ 2 आउट हो जाएगा हमेशा साइन 2t, और अगेन इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसकी वैल्यू 0। मैं यहाँ पे क्या ले लूँ, 2 cos 4t ले लूँ, ये भी ऑर्थोगोनल, 2 आउट हो जाएगा, अगेन इंटीग्रेट करेंगे 0 हो जाएगा, ठीक है। अल्टीमेटली कहने का मीनिंग क्या है कि जब भी एक कंप्लीट टाइम इंटरवल में इंटीग्रेट करें दो पीरियोडिक फंक्शन को, इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, तो वो डायरेक्ट बोल देंगे बोथ आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, एंड व्हेन इट इज ऑर्थोगोनल देन वी कैन ऐड द एनर्जी सिग्नल और पावर सिग्नल, इफ एंड ओनली इफ xt must be a energy or power। okay, clear? This is condition for DC and sinusoidal signal। and suppose in case अगर नहीं होते हैं, जैसे मैं बोल दूं यहाँ पे एक टर्म मैं यहाँ पे ले लूं, अच्छा एक टर्म पहले, इसके पहले मैं कुछ और डिस्कस कर लूं। जैसे मैं यहाँ पे बोल दूं xt इक्वल्स टू 2 साइन ऑफ t प्लस cos t, both are orthogonal or not, orthogonal because frequency and same and phase is also same। then if it is periodic signal then direct we have to find the power, power is what, 2 square by 2, next 1 square by 2, that is equals to what, 2 plus 1 by 2, that is what, 5 by 2 is the power of the signal। okay, suppose if I take here xt equals to sine of t and next sine of t। okay, find the power here, power is what, 2 square by 2, next 1 square by 2, what we can get here,
that is again we are getting the 5/2 here. But one thing is important here, what? This one is 2 sin t and sin t, both are same. Just add here 3 sin t. And what is the power of this one? 3 square by 2, that is equals to 9/2. Both are same or not? Both are not same here. Okay, क्या दोनों सेम है? नहीं, दोनों तो सेम सिग्नल थे ना, मैंने इसका डिफरेंट निकाला. बट क्या ये दोनों ऑर्थोगोनल हैं? नहीं, ये ऑर्थोगोनल नहीं है, तो कभी भी हम ऐसे कैलकुलेट नहीं करेंगे. स्टूडेंट कहेगा सर ये भी तो करेक्ट है. ये करेक्ट नहीं है. जब तक ये दोनों ऑर्थोगोनल नहीं होंगे तब तक यहाँ पे ऐड हम नहीं कर सकते. ध्यान रखना है माइंड में हमेशा. क्या मैं बोला? यहाँ पे ऑर्थोगोनल जब तक दोनों नहीं होंगे हम ऐड नहीं कर सकते. मीन्स देखो यहाँ पे साइन और कॉस हमेशा ऑर्थोगोनल है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम ऐड करके निकाल सकते हैं. अगर एनर्जी सिग्नल होता है दोनों तो एनर्जी ऐड करके निकालते, पावर है तो पावर निकाल लेते हैं. बट यहाँ पे दोनों ऑर्थोगोनल नहीं है, तो ये आंसर कभी नहीं हो सकता. आंसर कौन सा होगा? 9/2 होगा. ठीक है. अच्छा, मैं एक बोल दूँ टर्म, जैसे मैं बोलूँ साइन ऑफ 2t एंड -2 cos ऑफ 2t. अगेन दिस वन इज ऑर्थोगोनल. इसकी एनर्जी, इसका पावर क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर बाई 2. नेक्स्ट 4/2 हो जाएगा. अगेन मैं यहाँ पे प्लस कर दूं तब भी यही रहेगा, तो प्लस माइनस करने से कोई इफेक्ट नहीं आएगा. मीन्स f1t माइनस f2t, इट्स पावर इज p, देन f1 प्लस f2t, इट्स पावर इज अगेन p. क्लियर? नेक्स्ट, सपोज इफ बोथ आर नॉट ऑर्थोगोनल. मीन्स यहाँ पे क्या मैं बोल सकता हूँ? देखो यहाँ पे साइन और दोनों साइन है, साइन में सेम फ्रीक्वेंसी है. φ1 एंड φ2 की बात करेंगे. सपोज ये दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा. तो एक साइन रहेगा, सेकंड क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा. जैसे मैं φ1 0 ले लूँ, इसको 90 ले लूँ, तो साइन 90 प्लस थीटा, अगेन कॉस थीटा, एंड दिस वन इज साइन ओमेगा नॉट टी एंड दिस वन इज कॉस ओमेगा नॉट टी. अगेन दिस वन इज ऑर्थोगोनल. Again, suppose if φ1 minus φ2 is not π/2 here, then we can say both are not orthogonal to each other. Then how we can calculate here? We can apply the formula here. What? इसका जो है हम इसको चेंज करते हैं इस फॉर्म में, a नॉट साइन ओमेगा नॉट टी. तो हमें केवल एम्पलीट्यूड से मीनिंग है, हमें फ्रीक्वेंसी से कोई मीनिंग नहीं है. तो क्या हो जाएगा? a1 प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 cos φ1 माइनस φ2. एंड वन थिंग इज इंपॉर्टेंट हियर, व्हाट? φ1 माइनस φ2 शुड नॉट बी इक्वल्स टू n π/2. ठीक है, एक कंडीशन उसके लिए फुलफिल कर देगा. सपोज इसकी वैल्यू π/2 है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, अगेन स्क्वायर करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो वही तो बात हो गई. यहाँ पे a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कुछ चीजें. मैंने बोला था यहाँ पे साइन 2πt और यहाँ पे cos 2πt है. इसको भी किस में कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले साइन टी में कन्वर्ट करेंगे. देन वी हैव टू चेक द फेज हियर. साइन 2πt एंड साइन ऑफ व्हाट? 2πt प्लस π/3 प्लस π/2. क्लियर? व्हाट वी कैन से? दिस वन इज π/2 प्लस थीटा. अगेन वी आर गेटिंग द सेम थिंग. ओके, एंड व्हाट इज द डिफरेंस? φ1 माइनस φ2. φ1 minus φ2 equals to what? This one is what? 5π/6 here. Okay, this one is 5π/6. Then how we calculate a naught here? Just write here what? 1 square plus 1 square plus 2a1 a2, that is 1 into 1. Again what? That is cos 5π/6. Just calculate the value of a naught and total power pt equals to what? That is a naught square by 2. This is way to find the total power of this one. Okay, when both are not orthogonal. तो ऐसे हम अप्लाई करेंगे. तो जनरली इसमें जो क्वेश्चन आ चुका है तो स्टूडेंट बार बार वही उसी प्रैक्टिस में रहते हैं और बार बार क्या कैलकुलेट करके ऐड कर देते हैं. तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं. सपोज इसी की बात करेंगे हम. यहाँ पे देख लेते हैं ये क्या ऑर्थोगोनल है. ऑब्वियस सी बात है, साइन एंड साइन फंक्शन विद डिफरेंट हार्मोनिक ऑलवेज बी ऑर्थोगोनल टू ईच अदर. और देख लो यहाँ पे 90 नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? डायरेक्ट 2 स्क्वायर बाई 2. नेक्स्ट यहाँ पे 3 स्क्वायर बाई 2. दिस इज द पावर ऑफ टोटल पावर ऑफ द सिग्नल xt. या व्हाट अबाउट दिस वन इज साइन 3πt 7πt 10πt. अगेन वी हैव टू डू यर सेम थिंग. 3/2 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर बाई 2, अगेन 5 स्क्वायर बाई 2. दिस इज वे टू फाइंड द power of the signal xt here.
Okay. Next, come to the discrete signal. यहाँ पे मैं एक जनरल एग्जांपल ले रहा हूं, इसको समझ के सब कुछ समझ चुके होंगे। यहाँ पे मैं बोलूं सपोज दिस इज द सिग्नल xt a to power n even. First we have to find the energy here. Okay, first we have to find the energy and power. Either we can find the energy or we can find the power. And what is the formula for energy? That is minus infinite to infinite mod of xn square. This is way to find the discrete signal energy. And next power is what? Limit n tending to infinite 1 upon 2n plus 1 minus n to n mod of xn whole square. Sorry, this one is xn whole square here only. Okay. और यहाँ पे पीरियोडिक होगा तो 1 by n होता है, 0 to n हो जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम पहले बात करते हैं क्या an even. ओके, सपोज a इज mod magnitude of a is less than 1. If magnitude of a is less than 1 means how we can represent like that? Suppose if I take a equals to 1 by 2 here, then at n equals to 0, because this even is multiplied, then signal is valid from 0 to infinite. If I put n equals to 0, this one is 1. Again if I put n equals to 1, then a is 1 by 2. We can write here 1 by 2. Again n equals to 2, this one is 1 by 4 here. Again this one is decreasing, means magnitude is decreasing here, means this one is energy signal here. Okay, and what is the energy here? Suppose if I take a equals to 1 by 2 to power n un, then if I apply here energy equals to minus infinite to infinite, but due to the un limit is changed from 0 to what? Infinite. Due to un limit is changed from 0 to infinite. In 0 to infinite, what is the value of un? 1 by 2 to power n to power 2, that is equals to what? 1 by 4 to power n, means if I simplify here, that is 0. If I put 0, n equals to 0, 1 by 4 square and so on, then energy equals to what? 1 upon 1 minus 1 by 4, that is 4 by 3. Okay, clear? This one is 4 by 3 here. And energy is finite, we can directly say energy is finite, means this one is the energy signal. If power is finite, then we can directly say this one is the power signal. And if energy is finite, then power is what? 0 here. Okay, next, suppose if I take here what? Minus 1 by 2 to power n even, then what we have to do? If I squaring, the limit is 0 to infinite. If I square here, again this one is 1 by 4 to power n, and if I expand here, this one is 1, and again we are getting the same thing, that is 4 by 3. Means what I am trying to say, a equals to plus minus 1 by 2 होगा या प्लस माइनस 1 by 3 होगा, सबके लिए क्या होगा? माइनस होगा या प्लस होगा, इस पर इफेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? एनर्जी सेम ही आएगी। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? दिस इज n इक्वल्स टू 0 एंड दिस वन इज माइनस 1, दिस वन इज 1। तो इस रेंज में जब भी लेंगे किसकी? a की वैल्यू, मीन्स व्हेन मॉड a इज लेस देन 1, mod a is less than 1, this one is all xn is always be energy signal. Clear? Xn is always be energy signal when mod a is less than 1 here. Okay, next we have to discuss, suppose if I take here mod a equals to 1, then xn equals to what? Even. Xn equals to even. Okay, if it is even, then limit is what? 0 to infinite even mod square. Again we are getting 1 here. In 0 to infinite even is 1. Then what we can say? This one is what? 0 to infinite. This one is, again we are getting infinite, means this one is not energy signal. Then we have to find the power. Power limit and tending to infinite. This one is non-periodic, 1 upon 2n plus 1, and limit is goes from minus n to n un square. If I take the un n, then limit is changed from 0 to n only. Okay, this is un,
and 0 to n, this one is for positive value of n, this one is 1 here, 1 square again 1, means what we can say, limit n tending to infinite 1 upon 2n plus 1, this one is what, this one is 1, 1 को ऐड करेंगे 0 to n तक, जैसे मैं 1 को बोलूँ 0 to 3 तक ऐड करेंगे, तो 0 1 2 3, तो 1 1 1 1 सबको ऐड किया तो कितना हो गया, 4 हो गया। मीन्स जहां पे भी जितना ये टर्म तक जा रहा है उसमें एक ऐड कर दिया मैंने, 1 ऐड कर दिया, तो यहाँ पे इसको 1 को ऐड करेंगे 0 to n तक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, n plus 1। ओके, n is tending to infinite, just take n common here, then 1 plus 1 by n upon 2 1 by n। If I put the n equals to infinite, this one is 1 by 2, this one is 1 by 2। फिर for un, un is the n power of un is 1 by 2, and you can also calculate the power of un minus 1, this one is also, we are getting the same thing, 1 by 2। Clear? Means we can say here mod a equals to 1, this one is the power signal। Suppose if I take here what, means this one is n equals to 0 1 minus 1 1, यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा, क्या मैं कहना चाहता हूँ। यहाँ पे यहाँ से इस रेंज में क्या था, एनर्जी सिग्नल, इस पॉइंट पे क्या है, पावर सिग्नल, ठीक है। बट व्हेन मॉड ए इज ग्रेटर देन 1, मीन्स ग्रेटर देन 1 इन द सेंस मीन्स ए इज ग्रेटर देन 1 एंड माइनस ए इज लेस देन, सॉरी ए इज लेस देन माइनस 1, दो कंडीशन हो सकती है। तो ए इक्वस टू मैंने सपोज ले लिया क्या, ए इक्वस टू 2 या ए इक्वस टू -2 ले लिया, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 टू पावर n हो जाएगा, और इसको इंक्रीज कर n की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे तो क्या होगा, 4 आएगा, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 16 आएगा, ऐसे इंक्रीज करता चला जाएगा। मीन्स व्हाट इज हैपनिंग, मीन्स एम्पलीट्यूड इज इंक्रीजिंग व्हेन n is increasing, means this one is unstable signal, and if it is unstable signal then this one is neither energy nor power signal। ओके, तो यहां से क्या हम बोल सकते हैं, when mod a is greater than 1, this one is neither energy nor power, this one is neither energy nor power, then power is only at n equals to, sorry, a equals to 1, and when a is lie between -1 to 1, this one is the energy signal। तो हम जनरल मैंने डिस्कशन कर चुका हूं। यहाँ पे क्या करो, प्रीवियस जो भी क्वेश्चन आए हुए होंगे प्रीवियस ईयर या जो भी प्रैक्टिस करना, उसमें सिंपली इसी से कोरिलेट करके हम समझ सकते हैं कि वो एनर्जी सिग्नल होगा या पावर सिग्नल होगा, ठीक है। Suppose the x sign is given, we have to, suppose if I want to draw the graph of, and how we can draw the graph of this one is, arrow is indicated here, means this is n equals to 0, n equals to 0, magnitude is 1, again n equals to 1, magnitude is what, 2 3 4 and 5 here, this is n equals to 1 here, okay, 2 3 and 4 here, clear? And suppose if I want to represent here x of n minus 1, then this one is shift toward the right side, means this one is what, this one is start at n equals to 1 2 3 4 and 5, at n equals to 0 magnitude is 0 here, okay, means signal is shift toward the right, okay। If x n plus 1, again shift, signal shift toward the left here, then this one is start at n equals to what, -1 minus, sorry, n equals to -1 0 1 2 and 3, okay, means this one is start at -1, but magnitude is not change here in x n minus 1 and x n plus 1, signal is shift either left or right, but magnitude 1 2 3 4 is not change here, means what is the energy of xt, energy of xt just write here 1 square, again summation of what, minus infinite to infinite, okay, but this signal is valid for 0 to what, 4 here, 0 to 4 means we can write 0 to 4, 1 square 2 square 3 square 4 square and 5 square, that is 1 plus 4 plus 9 plus 16 plus 25, okay, this one is 9 plus 1 10, 10 this one is 20 30 and 25, that is 55 here, answer is 55, okay। Suppose if I shift the signal, again amplitude is not effect here, amplitude is again same, signal is shift toward the what, right side, but amplitude is again same, we are getting the same energy, x of what, n minus 1, that is 55, again energy of what, x n plus 1 is what, 55 here,
अगेन एनर्जी ऑफ एनी एक्स ऑफ एन माइनस एम, अगेन वी आर गेटिंग द 55। आइदर लेफ्ट शिफ्ट कर दो, प्लस माइनस में बोल दे रहा हूं, प्लस माइनस लेफ्ट शिफ्ट करो या राइट शिफ्ट करो, एनर्जी हमेशा क्या रहेगी 55 रहेगी। नेक्स्ट चेक द फोल्डिंग, फोल्डिंग पे चेक करेंगे, फोल्डिंग पे चेक करेंगे या रिवर्सल बोलते हैं इसको, रिवर्सल बोलेंगे तो इसको रिवर्स करेंगे तो मिरर इमेज अबाउट तो इसको लेंगे तो ये पूरा रिवर्स हो जाएगा, -4 पे जाएगा, -3 -2 -1 पे चला जाएगा, बट एम्पलीट्यूड चेंज होगा नहीं चेंज होगा, अगेन वी आर गेटिंग द सेम थिंग 55 एनर्जी। बट व्हाट अबाउट x ऑफ n by 2, व्हाट अबाउट x ऑफ n by 2, देन व्हाट वी हैव टू डू, मैंने बोला था यहाँ पे इसका जब मैं बता रहा था ऑपरेशन ऑन द सिग्नल, तो बाई 2 होगा तो इसको मल्टीप्लाई करते हुए सब में चले जाएंगे, तो एक आ जाएगा n इक्वल्स टू 0, नेक्स्ट आ जाएगा n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 4, n इक्वल्स टू 6, n इक्वल्स टू 8 हियर, बट मैग्नीट्यूड इज अगेन 1 2 3 4 and 5, magnitude is again not effect here, means सभी वैल्यू प्रेजेंट, अगेन वी आर गेटिंग द सेम थिंग 55। व्हाट अबाउट x ऑफ 2n, x ऑफ 2n में इसको डिवाइड करेंगे, n 0 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 ही रहेगा, 1 को डिवाइड करेंगे 1/2 तो इंटीजर वैल्यू के लिए केवल होता है, इस पे डिफाइन नहीं होगा, 1/2 पे कोई वैल्यू है नहीं है। नेक्स्ट 2 को डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 पे कितनी वैल्यू है 2 है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे इसको डिवाइड किया, 3 को डिवाइड किया, ये भी इस पे डिफाइन नहीं है, अगेन 4 पे डिवाइड किया, क्या हो गया 4 2 हो गया, तो हम क्या बोल सकते हैं 0 पे वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, ठीक है, मैग्नीट्यूड की वैल्यू की बात कर रहा हूँ, 1 पे क्या है 3 है और 2 पे क्या आ रहा है 5 आ रहा है, अगेन स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 स्क्वायर 1, 3 स्क्वायर 9, दिस वन इज व्हाट 10 35 here, okay, means one thing is most important here, in continuous x of at, when a is greater than 1, when a is less than 1, this one is called as compression and this one is called as expansion here. What about in discrete x of an, if a is greater than 1, this one is called as what, decimation, and when a is less than 1, this one is called as interpolation, interpolation। दे यहाँ पे देखो एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है इस पे, क्या हमारा इसमें इसको क्या बोलेंगे, दिस वन इज कॉल्ड एज इंटरपोलेशन, बिकॉज सिग्नल का एक्सपेंड हो रहा है, इसमें क्या हो जाएगा डेसिमेशन। वो कह रहा है किस में इफेक्ट हो रहा है एनर्जी हमारी, डेसिमेशन में एनर्जी इफेक्ट हो रही है, बट इंटरपोलेशन में एनर्जी हमारी इफेक्ट नहीं होती। इन डिस्क्रीट टाइम डोमेन की हम बात कर रहे हैं केवल, ठीक है। इन डिस्क्रीट टाइम डोमेन इन इंटरपोलेशन ऑपरेशन देयर इज नो इफेक्ट इन एनर्जी हियर, क्लियर। एनर्जी अगेन इफेक्ट नहीं होती, तो ये पॉइंट नोट करके लिख लेना इंटरपोलेशन की, ठीक है। जो भी मैं पॉइंट बता रहा हूँ इसको नोट करके लिख लेना, लास्ट टाइम में इसको रिवाइज करेंगे हम, जो जो पॉइंट मैं बोलता हूँ उसको लास्ट टाइम क्या करना, रिवाइज करना एग्जाम के समय 1 वीक 2 वीक पहले, ठीक है। उसका एप्लीकेशन आ जाएगा या क्वेश्चन उस पर आएगा, ठीक है। दिस इज इंटरपोलेशन एंड डेसिमेशन, ओके। सपोज एक और मैं टर्म बोल दूं, जनरली स्टूडेंट कभी कभी कंफ्यूज जाते हैं, इसको छोड़ के आ जाएंगे 1 - 2j and 1 + j and this is 3. Find the energy of xn, then find the energy of xn, again we have to do the same thing, 1 square, फार्मूला क्या होता है -∞ to ∞ mod ऑफ xn स्क्वायर होता है, मॉड लेते हैं तो इसका मॉड 1 ही स्क्वायर, अगेन इसका मॉड क्या हो जाएगा 2j, इमेजिनरी टर्म इसका मॉड लेंगे तो केवल 2 आएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, इसका मॉड लेंगे तो क्या हो जाएगा √2 आएगा, उसका स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, दिस वन इज सपोज 3 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 + 1 10, 10 + 6 दैट इज 16 हो जाएगा आंसर, ठीक है। इमेजिनरी में आंसर इसका नहीं लिखते हैं। नेक्स्ट कॉन्जुगेट सिमेट्रिक एंड कॉन्जुगेट एंटीसिमेट्रिक। What is the condition for conjugate symmetric and conjugate antisymmetric? Suppose if I take xt equals to what, at plus j bt, and what is the condition for conjugate antisymmetric? Means xt equals to what, at plus j bt, and here t is replaced by -t and conjugate means what, j is replaced by -j। conjugate जहां पे भी लेना होगा तो वहां पे क्या करते हैं, हमेशा j को रिप्लेस कर देंगे -j से, तो यहाँ इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, j रिप्लेस कर देंगे -j से, बट यहाँ t भी रिप्लेस और -t से, क्या लिखेंगे -t - j b ऑफ -t।
इन दोनों को क्या होना पड़ेगा, सेम होने के लिए क्या होना पड़ेगा हमें बता दो। इन दोनों को सेम होने के लिए क्या होना पड़ेगा, ए टी इक्वस टू वट, ए टी इक्वस टू ए ऑफ माइनस टी एंड बी टी इक्वस टू वट, माइनस ऑफ बी ऑफ माइनस टी. Means what we can conclude here, means if signal any xt is said to be conjugate symmetric signal, then its real part is even and its imaginary part is odd. Here means we can say xt equals to what, t square plus j sin t. This one is what, conjugate symmetric signal, because its real part is even and its imaginary part is odd here. Okay, what about the next, that is at plus jbt. Again this one is minus of, we have to write conjugate means minus j, and this one is what, a of minus t and minus j b of minus t. Okay, j of minus vt. If I multiply here, then what we can write, at plus j bt. This one is minus of a of minus t and plus j b of minus t. दोनों सेम होने के लिए क्या होना पड़ेगा यहाँ पे, फर्स्ट रियल पार्ट at इक्वस टू वट, at इक्वस टू माइनस ऑफ a ऑफ माइनस टी एंड नेक्स्ट bt इक्वस टू वट, b ऑफ माइनस टी. मीन्स व्हाट वी कंक्लूड हियर, फॉर इफ सिग्नल xt is conjugate antisymmetric, then real part is odd and imaginary part must be even. Means xt equals to what, suppose this is sin t plus j t square, suppose t to power 4. ये किसकी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, दिस इज द कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक सिग्नल. ओके, आई थिंक दिस वन इज क्लियर. एग्जाम में ये भी देखा होगा, एक क्वेश्चन बहुत आता है, एक्सन दिया रहेगा यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे दिया रहेगा, पूछेगा कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक एक्सन, दैट इज इक्वल टू व्हाट, एक्स ऑफ एन, एक्स ऑफ माइनस एन बाई 2. ठीक है, डिस्क्रीट के लिए होता है, डिस्कस करेंगे हम अभी, बट यहाँ पे यही होगा. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर टुडे लेक्चर. वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू सो मच.